Hello children, how are you all? You all are fine? Very good. Okay children, so did you revise body parts? Did you listen to the stories of body parts? Very good. Now children, today before we start anything, let's have a talk about something. Can you tell me that where do you live? आप लोग कहाँ रहते हैं? You live in a house. You live in a house. Very good. And with whom do you live? आप किसके साथ रहते हो? You live with your mama, papa, dada, dadi. Some of you live with your uncle and aunt also. Your cousins are also with you, right? Great. So, who all are they? They are your family members. They are your family members. So we all live with our family. Yes, we all live with our family. Very good. So children, some of you live in a big family and some of you live in a small family, right? Some of you live in a big family and some of you live in a small family. Now you know that big family is also called a joint family. What do we call? Joint family, right? So today I'll tell you a story of a boy who lives in a big family, in a joint family, right? But before that, one girl has come to meet you. She wants to show you her family members and she lives in a big family. Okay, so let's have a look. Friends, let me make you meet my loving and caring family. Number 1, this is my grandfather. To live as one, he teaches us, loves us all oh so much. Number 1, my grandfather. Oh, my loving grandfather. Number 2, this is my loving grandmother. Tells us stories every day. He tells us good things every day. Number 2, my grandmother. Oh, my loving grandmother. Number 3, this is my loving and dear uncle. Loves us all very much. Sweets and toffees he gives us. Number 3 is my uncle. Loving, caring uncle. Number 4, this is my sweet loving aunt. Mom and aunt are best friends. Her love for us will never end. Number 4 is my loving aunt. Oh, my loving, caring aunt. Number 5, he is my dear loving cousin brother. We all stay together, but fight and quarrel we never. Number 5, my cousin brother, loving cousin brother. 1, 2, 3, 4, 5. Next number is 6. This is my loving cousin sister. Her toy she loves, foreign cares, but her toy she always shares. Number 6, my cousin sister, my dear cousin sister. Number 7. This is my dear loving father. To live with love he teaches us, to help others he preaches us. Number 7 is my father, oh my loving father. Number 8. And this is my loving mummy. Feeds us good food every day, tells us how to shine each day. Number 8 is my dear mom, oh my loving mommy. Number 9. He is my dear and caring brother. He takes care of all of us, never ever troubles us. Number 9 is my brother, oh my loving brother. And number 10 is me. Everyone's sweet and favorite. I'm the youngest in the house, and I trouble them a lot. Still they love me very much. I am loving number 10. Come, let's meet everyone again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is my loving family. So did you see
दैट गर्ल लिव्स इन अ बिग फैमिली. यस, वो गर्ल कितनी बिग फैमिली में रहती है. एंड हर फैमिली हैज 10 members. देखा ना आपने कि उसकी फैमिली में 10 members हैं. एंड शी वॉज सो हैप्पी. उसे कितना मजा आ रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. यस. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ बॉय whose name was Keith. And that boy also lived in a big family. वो भी बहुत big family में रहता था. But he was not happy living in a big family. जैसे वो गर्ल हैप्पी थी ना, कीथ बिल्कुल हैप्पी नहीं था बिग फैमिली में. उसको लगता था कि इट्स अ बिग हेडेक. कितना हेडेक हो जाता है, हाउस में कितना शोर होता है. सो ही वॉन्टेड टू लिव अलोन. उसको अकेला रहना था. One day his family members had to attend a wedding. उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे ना, मम्मी पापा, दादा दादी, उसकी सिस्टर, उन सबको एक वेडिंग में जाना था. यू नो व्हाट इज वेडिंग? एक मैरिज पे, एक शादी पे जाना था. सो कीथ सोचता है, वाओ दिस इज द राइट टाइम टू लिव अलोन. ये सब चले जाएंगे और मैं अकेला रहूंगा हाउस में. बट उसके मम्मी पापा जो थे, दे डिड नॉट वांट कीथ टू बी स्टे अलोन. यस, उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो घर पे अकेला रहे. सो उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत समझाया दैट कीथ यू ऑल्सो कम विद अस. बट कीथ बिल्कुल नहीं माना. ही सेड दैट मम्मी पापा, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट. आई हैव अ फुटबॉल मैच प्रैक्टिस टुमारो, सो आई कांट गो विद यू. बट उसके मम्मी पापा बहुत समझा रहे थे. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. एंड एट लास्ट उसके मम्मी पापा मान जाते हैं. वो कहते हैं ओके यू स्टे होम एंड वी आर गोइंग. तो उसके मम्मी पापा चले जाते हैं वेडिंग पर, उसको अकेला छोड़ के. एंड नाउ कीथ वॉज सो हैप्पी. वो इतना खुश होता है कि मम्मी पापा चले गए एंड आई एम ऑल अलोन एट होम. और वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को बुला के एंजॉय करूं. वो वन बाय वन अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है. तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स तो अवेलेबल ही नहीं होते. एंड देन एट लास्ट उसके एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल लग जाती है, जिसका नेम होता है जेक. वॉट वॉज हिज फ्रेंड्स नेम? जेक. और जेक जो है उसके पास हाउस में आ जाता है. एंड बोथ वर प्लेइंग, बोथ वर एंजॉइंग. की बहुत खुश होता है, वो सो हैप्पी. एंड आफ्टर दैट दे वर फीलिंग हंग्री. उनको भूख लगने लगती है. एंड दे डिसाइडेड टू गेट पिज्जा. वो डिसाइड करते हैं कि हम जाके पिज्जा लेके आते हैं. सो they got on their bicycles and began racing with each other. जोर जोर से स्पीड में बाइसिकल चला के रेस करते हैं. और एकदम से क्या होता है, कीथ फेल डाउन. कीथ गिर जाता है और उसको बहुत चोट लगती है और वो एकदम से फेंट हो जाता है. ही फेंटेड, बेहोश हो जाता है ऐसे आइज बंद करके. एंड वेन ही वोक अप, उसकी जब आईज खुलती है, ही फाउंड हिमसेल्फ एट हॉस्पिटल. वो देखता है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ. एंड जेक कॉल्ड अप हिज पेरेंट्स. जेक उसके मम्मी पापा को कॉल करता है और उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में आते हैं और कीथ को हाउस लेके चले जाते हैं. उसकी जो लेग्स होती है ना, दी फ्रैक्चर्ड, उसकी लेग्स टूट जाती हैं. उसकी जो बोन्स होती हैं लेग्स की, वो टूट जाती है. तो कीथ अभी कहीं वॉक भी नहीं कर सकता. तो जब उसके मम्मी पापा उसको हाउस में लेकर आते हैं, तो जो उसके डैड होते हैं, ही वॉज सो एंग्री. यू नो वाई ही वॉज एंग्री? बिकॉज कीथ टोल्ड हिम अ लाई. कीथ ने झूठ बोला था कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारा काम करना है, सो आई कैन नॉट गो विद यू. सो उसके मम्मी पापा बहुत गुस्सा होते हैं. बट उसकी मम्मा उसके पापा को समझाती हैं कि आप उसको अभी स्क्रीम मत करो बिकॉज ही इज नॉट वेल. एंड आफ्टर फ्यू डेज कीथ रियलाइज्ड दैट living in a big family is so important because all of them were taking care of him. सब उसका इतना ध्यान रख रहे थे. उसके डैड उसके लिए बुक्स लेके आए, गेम्स लेके आए टू कीप हिम बिजी. उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको स्टोरीज सुनाते थे. So he was so happy and then he realized that yes, mama is cooking so yummy food for me and his sister उसके हेड पे मसाज करती थी. सो दैट डे ही रियलाइज्ड कि सब फैमिली मेम्बर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लव योर फैमिली. येस चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर फैमिली. कीथ को बाद में रियलाइज हुआ कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को प्यार करना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
So you also love your family members, love your mummy papa, love your grandparents. Yes, they do so much for you. वो भी आपके लिए कितना कुछ करते हैं ना. आपके पापा मम्मा आपके लिए टॉयज लाते हैं. दे ब्रिंग ड्रेसेस फॉर यू. ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरीज सुनाते हैं. वो भी आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं. सो love your parents, love your family members. Yes? Great. Now children, please listen to this story. Okay? Now I'll meet you in my next video. Bye bye. Take care.